Assalamu alaikum friends. Today I'm going to talk about my own subject, that's political science, and in political science the topic that I have chosen for today's discussion is the concept of fundamental rights. This is a very important topic, and it's a topic which is being asked in almost all the examinations, be it a simple annual examination of the students or any other competitive examination. You will definitely find few questions from this portion of political science. So talking about the history of fundamental rights, these rights have been taken from the Constitution of America, USA. As everybody knows, that Indian Constitution is known as the bag of borrowings, because the different provisions that exist in the Indian Constitution have been borrowed from different constitutions of the world. For example, the concept of fundamental rights has been taken from the Constitution of USA. Similarly, the concept of fundamental duties has been borrowed from the Constitution of Russia. Similarly, the concept of directive principles of state policy has been borrowed from the Constitution of Ireland, so on and so forth. So this concept was taken from the Bill of Rights that exist in the US Constitution. Talking about the original number of rights, fundamental rights that exist in the Indian Constitution, the original Constitution of India was having 7 fundamental rights. But later on, right to property was excluded from the list of fundamental rights through 44th Amendment Act of 1978. And it was made a legal right under Article 300A. It's no more a fundamental right, but it's a legal right now. It ceases to be a fundamental right. यहाँ पे बच्चों को ये ज़रूरी समझना है कि ओरिजिनली जो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को इस लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया और इसको एक लीगल राइट बनाया गया. Here the students may ask कि what is the difference between a legal right and a fundamental right? यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ that fundamental rights are fundamental in the nature because of 2 reasons. Point number 1, that because these rights have been enshrined in the Indian Constitution. I mean, these rights have been guaranteed by the Indian Constitution, point number 1. Point number 2, these fundamental rights are enforceable. These rights are backed by the law. In case of any violation of the fundamental rights, you can directly move to the court of law for the enforcement of the same. तो इसलिए इनको फंडामेंटल कहा गया है. बट इन केस ऑफ द लीगल राइट्स, इफ योर लीगल राइट इज बीइंग स्नैच्ड बाय समवन और इट्स बीइंग वायलेटेड बाय समवन, इन दैट वेरी सिचुएशन यू कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू द एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यू हैव टू अप्रोच द लोअर कोर्ट फर्स्ट. Accordingly, you have to go to the upper court for the settlement of the same. But in case of the violation of the fundamental right, you can directly approach the Supreme Court of India, and Supreme Court of India has been empowered to issue certain kinds of writs. For example, writ of prohibition is there, certiorari is there, quo warranto is there, mandamus is there. There are 5 types of writs which the courts can issue for the enforcement of the fundamental rights. But in case of the legal rights, you cannot directly move to the apex court. यहाँ पे मैं और थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा. एक्चुअली 3 टाइप्स के लॉज होते हैं. एक हम लीगल राइट्स के राइट्स होते हैं. लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड fundamental rights. Fundamental rights are incorporated in Part 3rd of Indian Constitution. So Part 3rd of Indian Constitution exclusively talks about the fundamental rights. इनके अलावा जितने भी राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं. और इनके अलावा जो डिफरेंट पार्लियामेंट एक्ट्स के जरिए से जितने भी राइट्स हमें दिए गए हैं उनको हम लीगल राइट्स कहते हैं. सो दीज वेर द 3 टाइप्स ऑफ राइट्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. Now we will talk about the 6 fundamental rights that has been guaranteed by the Indian Constitution. The first fundamental right that has been provided to the citizens of India is right to equality. Then comes right to freedom. Then comes right against exploitation. Then is right to freedom of religion, cultural and educational rights. Last but not the least is right to constitutional remedies. Article 14 to 18 of Indian Constitution deals with right to equality. Article 19 to 22 of Indian Constitution deals with right to freedom. 23 and 24 deals with right against exploitation. 25 to 28 of Indian Constitution deals with right to freedom of religion. 29-30 deals with cultural and educational rights. 32 to 35 of Indian Constitution deals with right to
constitutional remedies, which is also known as the heart and soul of the Indian Constitution, because this, under this right, one can directly move to the Supreme Court of India for the enforcement of the fundamental rights if any one of his fundamental right is being violated by the state. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 से ही हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है. We will try to as many articles as possible in this video. जितने भी इसमें पॉसिबल होता है आर्टिकल्स को कवर करना हम करने की कोशिश करेंगे. जो बाकी वाला इस पोर्शन रहता है, we will try to cover that very portion in the next video inshallah, because it's very much difficult to cover all the articles in the single video. सो आर्टिकल 12 जो है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शायद 12 और 13 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 से ही फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं. ये सही बात है कि आर्टिकल 14 से ही हमें फंडामेंटल राइट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 और 14, आर्टिकल 12 और 13 जो है ये भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील करते हैं. चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 12 हमें क्या कहता है. आर्टिकल 12 एक्चुअली डिफाइन्स द वर्ड स्टेट. देखिए, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली नेगेटिव इन नेचर. These are negative in nature in the sense that they negate the state not to do certain things. Fundamental rights जो है ये स्टेट को मना करते हैं, आप ये चीजें मत कीजिए, do not do this, this and this. So इसमें आपको जो है जो आर्टिकल 12 है वो यही कहता है कि स्टेट, अगर वहां पे स्टेट को मना किया गया है ये चीजें आप मत कीजिए, तो स्टेट हम किसको कहेंगे. Article 12 says that state includes the government and the parliament of India. It includes all the states. It includes the state governments and the legislatures of the states. It also includes the other local and other authorities. मैं यहां पे रिपीट करता हूं, स्टेट से मुराद है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत, और हिंदुस्तान का पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा. और स्टेट से मुराद है जितने भी रियासती हुकूमतें हैं और उनके लेजिस्लेचर्स जितने भी है. पहले 29 स्टेट्स थे, नाउ देयर आर ओनली 28 स्टेट्स इंस्टेड ऑफ 29, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर सीज्ड टू बी अ स्टेट, इट वाज मेड अ यूटी लास्ट ईयर. तो जितने भी 28 रियासती ये लेजिस्लेचर्स है वो भी स्टेट कहलाएंगे, और जितने भी जो 28 गवर्नमेंट्स है रियासती सतह पे वो भी स्टेट के जुमरे में आते हैं, उनको हम स्टेट कहा जाएगा. और अदर लोकल अथॉरिटीज से यहां पे मुराद है हमारे जो गांव के लेवल पे अगर हम देखें, एट विलेज लेवल वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायत्स, एंड इन अर्बन एरियाज वी हैव द म्युनिसिपैलिटीज. वहां पे भी हम उनको स्टेट कहेंगे. हम पंचायत को भी स्टेट कहेंगे और हम म्युनिसिपैलिटी को भी पंचायत कहेंगे. और यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल जो 12 है कि स्टेट से मुराद है एंड अदर अथॉरिटीज. इट इज वेरी एम्बिगियस टर्म, इसने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है. और अदर अथॉरिटीज से क्या मुराद है, तो इसमें कोर्ट्स के बहुत सारे वर्डिक्ट्स आ गए, बहुत सारे जजमेंट्स आ गए, जिसमें ये इस बात के लिए चैलेंज किया गया कि आया हम एक पर्टिकुलर एजेंसी को स्टेट कहेंगे या नहीं कहेंगे. फिर डिफरेंट जजमेंट्स में डिफरेंट चीजों को स्टेट कहा गया और कुछ जजमेंट्स में कुछ चीजों को स्टेट नहीं कहा गया. तो उसमें इंशाल्लाह हम अलग एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 12 में किस चीज को हम स्टेट कहेंगे, इस बारे में कितने जजमेंट्स आए हैं, किस चीज को स्टेट बोला गया है और किस चीज को स्टेट नहीं बोला गया है. उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. तो मोटे तौर पे हम आर्टिकल 12 को फिर से समझने की कोशिश करेंगे. आर्टिकल 12 सेज कि स्टेट जो है, स्टेट हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को. स्टेट मीन्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जितने भी रियासती हुकूमतें हैं और उनके जितने असेंबलीज हमारे पास है. किसी स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, किसी में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है. यूनिकैमरल वाले में लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाईकैमरल जहां पे लेजिस्लेचर है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको स्टेट बोला गया है. और स्टेट बोला गया है लोकल अथॉरिटीज को. लोकल अथॉरिटीज में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, और अदर अथॉरिटीज एम्बिगुअस टर्म है, उसमें बहुत सारे जजमेंट्स है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह. तो आर्टिकल 12 यही डिफाइन करता है स्टेट. लेकिन आपको यहां पे ये चीज याद रखना है कि आर्टिकल जो 12 है, यहां पे जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, इट अप्लाइज ओनली टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में यू विल गेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टार्ट होते हैं फिर आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. याद रखना है ये खाली पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए अप्लाई होता है, जहां पे जिन चीजों को यहां पे स्टेट बोला गया है. फिर आर्टिकल 13 की बात करते हैं. आर्टिकल 13 सेज, आर्टिकल 13 एक्चुअली हमें बताता है कि
जो भी लॉज प्रिवेलेंट थे, ऑल द लॉज दैट वेर प्रिवेलेंट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, if they are inconsistent with the provisions of the fundamental rights, they shall be declared as null and void. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जितने भी लॉज हिंदुस्तान में इस कानून के जारी होने से पहले राइज थे, यानी कि 1950 में ये कानून लागू किया गया, इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, उससे इमीडिएटली पहले जितने भी लॉज हिंदुस्तान में राइज थे, अगर उनमें से कोई भी लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, दोज लॉज शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, उनको इनवैलिड समझा जाएगा। इसका जो आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच विल बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो इसका सेक्शन 2 है 13 का, वो कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ नहीं बना सकता है जो इनकंसिस्टेंट होगा, दैट शुड बी अल्ट्रा वायलेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आर्टिकल 13 का पहला सेक्शन कहता है कि जितने भी लॉ पहले बने हुए थे, अगर उनमें कोई भी लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो इनवैलिड होगा। लेकिन आर्टिकल इसका दूसरा सेक्शन कहता है 13 का, अगर कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है जो इनकंसिस्टेंट होगा, जो अगेंस्ट होगा फंडामेंटल राइट्स को। एक्चुअली दीज टू आर्टिकल्स सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स। अब हम 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 14 to 18 of Indian Constitution deals with right to equality. Article 14 says that everybody is equal before the eyes of law. Article 15 says that there should be absence of discrimination on the basis of caste, color, creed, sex, religion, etc. Article 16 says that there should be equality of opportunity in matters relating to employment. Article 16. Article 17, abolishes untouchability. Article 18 says that state cannot confer any title except military and academic. Now let's understand these rights one by one. राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से 18 के बीच में आते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कानून की नजर में सब बराबर है, कानून को एक ही नजर से सबको देखना है। अगर कोई बंदा क्राइम करता है, कोई चोरी करता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, दलित है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है, उनको एक ही सजा उनके लिए होगी। उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया है कास्ट के बुनियाद पे, क्रीड के बुनियाद पे, सेक्स और रिलीजन के बुनियाद पे, किस मजहब से है, गोरा है, काला है, रंग, नस्ल, जात पात की बुनियाद पे कोई तफर्रुक नहीं होगा, बल्कि एवरीबडी शुड बी डेल्ट विद द सेम लॉज। लॉ जो है वो इक्वली हर एक बंदे पे अप्लाई होगा। लेकिन यहां पे एक बात हमें समझनी चाहिए, दीज लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, बट दीज आर बैक्ड बाय द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इक्वलिटी बिफोर डज नॉट मीन कि इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स, यानी कि अनइक्वल्स को हम इक्वल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई चोरी करता है, दूसरा जो है वो रेप का गुनाह करता है, तो उनको एक ही लॉ से ट्रीट किया जाएगा। यहां पे इक्वलिटी से मतलब है अगर इक्वल क्राइम किया है तो इक्वल लॉ से दोनों को डील किया जाएगा। दे विल बी पनिश्ड विद द इक्वल लॉ इफ द क्राइम इज सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम डिफरेंट है, तो वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है इक्वलिटी ऑफ, जिसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा। यानी कि रंग, नस्ल, जात पात की बुनियाद पे कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा। Access to the parks, to the restaurants, to the gardens, to the roads, that should be same. यहां पे भी कोई भेदभाव कानून नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इन बेसिस पे, रिलीजन की बेस पे। अगर हमें पब्लिक जो पार्क्स है उनमें एक्सेस देना है तो वह हमें हर बंदे को देना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर क्रीड और कास्ट। इन चीजों पे हमें कोई भी तफर्रुक नहीं करना है। आर्टिकल 16 कहता है देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी के मामलात में हर किसी को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। यहां पे भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होना चाहिए, इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक पास है, दूसरा पीएचडी है, दोनों सेम जॉब क्लेम करते हैं, इसको हम इक्वलिटी नहीं कहते हैं। दोनों पीएचडी है, दोनों एक ही जॉब क्लेम कर रहे हैं, उसको हम इक्वलिटी कहेंगे। अगर दोनों पीएचडी है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, दोनों का हक यहां पे बराबर है,
एक दलित है, एक ब्राह्मण है, दोनों का यहां पे हक जो है वो बराबर है। यहां पे कोई कानून को कोई डिफरेंशिएट, स्टेट को यहां पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करना। इसी को हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। जॉब के मामले में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि 10th पास बंदा जो है वो पीएचडी जॉब सीख करने के लिए जा रहा है, उसको हम इक्वलिटी नहीं कहेंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि इट एक्चुअली एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को ये एबॉलिश करता है। छुआछूत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम कुछ सोसाइटीज में हमें मिलता है, ब्राह्मण है, कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर कास्ट से समझते हैं, ये दलित है, इससे मैं कोई टच नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा। इस चीज से यहां पे मना किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर्टिकल 18 which says that state cannot confer any title except military and academic। यानी कि स्टेट किसी को कोई लकब नहीं दे सकता है, कोई खताब नहीं दे सकता है किसी इंसान को बगैर मिलिट्री एंड एकेडमिक। अगर मिलिट्री में मुल्क की दिफा के लिए उसने कोई अच्छा काम अंजाम दिया है या एकेडमिक्स में उसने कोई ऐसा काम किया है, उसके लिए स्टेट कॉन्फर टाइटल कर सकता है। बाकी मामलात में स्टेट कैन नॉट कॉन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। यहां पे जो इंडियन सिटीजन है वो किसी फॉरेनर से भी, फॉरेन कंट्री से भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और अगर कोई फॉरेन बंदा यहां पे काम कर रहा है हिंदुस्तान में, इफ दैट वेरी पर्सन इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, उसको ही कैन नॉट सीक एनी दिस गिफ्ट और प्रेजेंट और एनी काइंड ऑफ टाइटल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री विदाउट द प्राइम कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चीजों से यहां पे इस आर्टिकल ने मना किया हुआ है। तो ये जो सारे आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये डील करते थे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोला, तो इंशाल्लाह जो बाकी 5 राइट्स अभी बाकी है उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बात करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मुझे पता भी इस पे बहुत कुछ बोलना बाकी है, तो प्लीज वो मुझे कमेंट में आप लिख लीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बाकी जितने भी इश्यूज इसमें रहते हैं वो हम बाकी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।